Started great. Now try to see. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास में बहुत सारा काम होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिवाइड हिज वर्क, उस काम को डिवाइड करने के लिए आपको क्या लगता है क्या किया गया होगा? कुछ लोग रखे होंगे, रिक्रूट किए होंगे। शुरुआत में जो लोग रखे गए थे, रिक्रूट किए गए थे, वो 4 लोग। ओके, उन 4 लोगों की बॉडी को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे। किसका एग्जीक्यूशन करते थे, किसके मामलों का एग्जीक्यूट करते थे, किसके मामलों को इंपोज करते थे? गवर्नर जनरल, ठीक है। और बॉडी को काउंसिल बोला गया। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है एग्जीक्यूटिव, हां सर, ठीक है। तो किसके मामलों का एग्जीक्यूट करते थे? गवर्नर जनरल बंगाल के। तो वो 4 लोग थे। तो पॉसिबिलिटी है कि 2 लोग कोई बात बोल रहे हैं, 2 लोग कोई बात बोल रहे हैं। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नर जनरल बंगाल टू टेक हिज ओन डिसीजन। यस सर। So now at the end of the day, Governor General of India have to take the decision, and that decision must be his own decision and should not be biased one. ऐसा होना चाहिए था। Now same thing happened in India also. अभी इंडिया में ये सब चीजें होती हैं। Now try to see. We have 2 houses. What we say parliament. पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? मतलब पार्लियामेंट में क्या-क्या चीजें आती हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यस सर। ये 3 चीजों को कलेक्टिवली वी से पार्लियामेंट। इट मे बी पॉसिबल कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, ये भी पॉसिबिलिटी है। लास्ट में उसको कौन सॉर्ट आउट करेगा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गॉट द पावर इन सेम फैशन, द पावर व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज हैविंग। यस सर, गॉट इट? Everyone got this point? The president of India got the power in the same fashion how the governor general of Bengal earlier was having in 1773 regulating act. Now same thing have been copy pasted in Constitution of India in a certain amended way under Article 108C. So you can write this article, this very important article. The president has the special power to break the deadlock situation. To break what? To break the deadlock situation. If there is a confusion, there is a conflict between Lok Sabha and Rajya Sabha, that is the last power of the president. He can choose either of the decision, maybe with the Lok Sabha or maybe with the Rajya Sabha, or may choose as some new decision. It's up to the president of India. So in order to break the deadlock decision, he have the power, and that power he got. It is somehow the reflection of 1773 regulating act, and that power as if now currently given in Article 108 Section C. लिख लिया इसको? Yes sir. Great. So later on we got our Supreme Court also. Yes. But again, what I am saying, the Supreme Court that we were having at that time, that was only and only for the Britishers in India or capitalists in India. Now try to understand what I am saying to you fellows, online और offline, समझने की कोशिश करें इस बात को। मैंने आपको एक बात बोली, उस समय जितने भी लॉज थे या जितने भी कोर्ट के कितने भी प्रोविजंस थे, वो या तो ब्रिटिशर्स के लिए बनाए गए थे जो भारत में हैं, या फिर वो भारतीय जो कि पूंजीवादी है, जो कि कैपिटलिस्ट है, जो कि इतनी इनकम रखते हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके लिए बनाए गए थे। वो आम भारतीयों के लिए नहीं थे। तो पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं, शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी गई थी, दैट वाज अंडर द इंप्रेशन ऑफ सिविल डिफेंस, नॉट इन क्रिमिनल डिफेंस। सुप्रीम कोर्ट की किस लिए शुरुआत की गई थी? फॉर द सिविल डिफेंस, फॉर द सिविल मैटर्स, नॉट फॉर द क्रिमिनल मैटर्स। So if someday somebody asks you that you are preparing for the civil services, my dear friend, your chacha, mama, tau, maja, fufa, whosoever will ask you, and he will say, okay, now tell me why Supreme Court India actually came into the picture in India. You can say the Supreme Court of India came into the picture. Reason was to sort out any kind of a dispute among the Britishers or among the capitalists in India. And if the next question he forced towards you, okay, now what kind of procedure they were following? Either it was IPC or CRPC. You directly said, as we can understand, it is all about the profit, trade and commerce. It must be CRPC, it must be IPC, Indian Penal Code, the Civil Code. It must be Civil Code. From 1774 itself, IPC was there. शुरुआत से IPC नहीं थी, लेकिन मैटर कौन से थे? सिविल कोड, सिविल, जो कि अभी आईपीसी का एक पार्ट है, तो सिविल कोड के पार्ट के मैटर्स थे वो। समझ में आई बात?
एंड एज इफ नाउ सुप्रीम कोर्ट अभी आर्टिकल 124 में एक्सप्लेन्ड है क्या सुप्रीम कोर्ट। Someday I will, when I will teach you Supreme Court, I will make you understand everything regarding Supreme Court. ठीक है। ओके, यहाँ तक डाउट आप दोनों में से किसी को भी? नो सर। ओके सर, बोलो बोलो। who initiated the process to make this body Supreme Court of, मतलब Supreme Court at that time? भाई एक लॉ फ्रेमिंग बॉडी अलग बनाई गई थी इंग्लैंड में, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि ठीक है हम इंडिया में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। तो कहाँ पे बनाए सुप्रीम कोर्ट? तो लॉ फ्रेमिंग बॉडी ने बोला कि जहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल को आसानी रहेगी जाने आने में। सो दैट वाज कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता के फोर्ट विलियम। इसका एड्रेस अगर आपको चाहिए मैं एड्रेस लिख देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। व्हाट वाज द एड्रेस? Listed there, sir. कलकत्ता गया वहाँ पे? Yes sir, Fort William में। फोर्ट विलियम 700021 पिन कोड। ठीक है, इट इज देयर, इट इज इन कलकत्ता फोर्ट विलियम एंड व्हाट आई हैव रेड अबाउट इट नियर समहाउ हुगली, बैंक ऑफ हुगली के पास बाबू घाट है, उसके पास में समवेयर देयर। Indian museum is also very near to that. हाँ, वहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं कलकत्ता इटसेल्फ वेरी गवर्निंग हब एट दैट टाइम आल्सो। सो दैट्स द एग्जैक्ट एड्रेस कलकत्ता फोर्ट विलियम से इसकी शुरुआत हुई और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की नींव रख दी गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट? It is the superior one. Have you seen Supreme Court? कहीं बाहर से कभी जाते हुए देखा हो? दिस इज सुप्रीम कोर्ट। Delhi. देखा है सर, डेली देखते हो? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान, इट्स सुप्रीम कोर्ट नाउ। द मेट्रो पर्सन नाउ यूज्ड टू से सुप्रीम कोर्ट, अगला स्टेशन सुप्रीम कोर्ट। दरवाजे इस तरफ को नहीं उस तरफ को नहीं, व्हाटएवर। इट्स सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब आपका हुआ कि एक बिल्डिंग है। आपने एक बिल्डिंग को बोला सुप्रीम कोर्ट। इज इट रियली बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट? No sir. So what is Supreme Court? You defined Supreme Court, we have seen from our both eyes that is Supreme Court, and now we believe Supreme Court somewhere in Pragati Madan. But I am asking, does it really Supreme Court? No sir. So what is Supreme Court? A constitutional body. Supreme Court is nothing but a group of judges and Chief Justice of India. Wherever that Chief Justice measure his office, मैं आज जो है यहाँ से अपने काम करूँगा, that person, that place become the Supreme Court. जो उसके कॉलेजियम में 30 जजेस होते हैं, ठीक है, प्लस में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने कॉलेजियम के सामने जहाँ पे अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा उसे सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। सेम गोज विद द हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स। Yes sir. सो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, चीफ जस्टिस पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, दिस एंड दैट, जहाँ पे वो चीफ जस्टिस अपने कॉलेजियम के साथ बैठ जाएगा, दैट बिकम द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज नॉट अ बिल्डिंग, हाई कोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। Okay sir. Supreme Court is not a building, it's a collegium of Chief Justice of India. Understand? Yes. So if I will say Supreme Court was there in Kolkata, it means the Chief Justice started being there. Working from there. Now we have to understand here what are the three pillars of Constitution or of Indian polity? Legislature, executive, and judiciary. These are the three pillars. Are you sure? Any doubt? Okay. तो अभी तक हमने क्या क्या चीज देख ली है, किस क्या क्या चीज इंडिया में आ चुकी है? Regulating Act, Charter Act, and the Regulating Act. ये सारी चीज इंडिया में आ चुकी है। Yes. क्या जुडिशरी बॉडी इंडिया में आ गई है? Yes. 70. Understood that? Yes. So as per regulating act, the three pillars of the democracy of Indian polity, among all these three pillars we got the two, Yes. one is executive, another is judiciary. Judiciary. उसकी शुरुआत हो गई इंडिया में। तो एक्जीक्यूटिव की शुरुआत गवर्नर जनरल बंगाल से होगी एंड जुडिशरी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से इंडिया में अब हो चुकी है। समझ में आई ये बात? एंड these two articles are very important. This somebody will ask in the question कि आर्टिकल 108 सेक्शन सी कहां से लिया गया? डायरेक्टली से
1773 regulating acts, and the same thing goes for Supreme Court. ठीक है, earlier it was a civil procedure called later कई सारे amendment होने के बाद उसकी जगह भी चेंज हुई, things were like that. Okay, तो regulating act हमारे यहाँ पे अच्छे से खत्म होगा. हम फर्दर बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1774 की. What's the meaning of PITS? Name of a youngest prime minister till now. William Pitts. The youngest prime minister, Lord William Pitts, of 21-year-old, he got the oath under the supremacy of British Crown, and he became the prime minister of England, and he passed few important decisions. So youngest of Youngest prime minister of England, और सभी जगह का अभी तक 21 साल का अभी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर नहीं बना. कॉन्स्टिट्यूशन टाइम से राजा का बेटा नहीं है ना, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर नहीं बना अभी तक का. yes sir. Okay, so control of company by board of control. सबसे पहले जो कंपनी में कंट्रोल था अभी तक किसका था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का था. अब उसके ऊपर में क्या आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर होंगे? देयर मस्ट बी 6 मेंबर, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 4 प्राइवेट काउंसिलर एंड 1 एक्सचेकर. Now we have to understand what is the meaning of each and every word that is written on the board. So as per this PITS India Act, there must be 6 members. यहाँ पे 6 सदस्य होने चाहिए, 6 मेंबर्स होने चाहिए. There must be 6 members. Among all these 6 members, इन्हें सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाएगा, एंड दे विल रेगुलेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलेट करेंगे. इन 6 मेंबर में सबसे पहला कौन है यहाँ पे? एक कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा. yes sir. 4 कौन होंगे? प्राइवेट काउंसिल. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइवेट? प्राइवेट मींस प्राइवेट. like PA person assistant. this one. They are the bureaucrats. They were the bureaucrats. तो किसी भी कोई 4 ब्यूरोक्रेट जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको चूज करके वहां पे असिस्टेंट्स के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बना दिया जाएगा कोई भी 4 ब्यूरोक्रेट. तो ये डिपेंड नहीं करता है कि वो ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से होंगे या एग्रीकल्चर होंगे, वो सब ओवर पड़ दिया. 4 प्राइवेट काउंसिलर को वहां भेज दिया जाएगा, ठीक है. एंड 1 इज एक्सचेकर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेकर? इज no idea. इज अ काइंड ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर का नाम सुना आपने? yes sir. ये ऑडिटिंग का काम करते हैं, फाइनेंस के मैटर में. ऑडिटिंग देखता था कि जो पैसा आ रहा है वो सही तरीके से आ रहा नहीं आ रहा, उसके ऑडिटिंग का काम इसका होता है. बहुत जरूरी है. समझ में नहीं बात? तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग था, कोई बताना चाहिए उसमें लोग किस किस तरह के थे. एक कैबिनेट मिनिस्टर था, ठीक है. उसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा 4 प्राइवेट काउंसिलर थे, ठीक है. प्राइवेट काउंसिलर कौन होते हैं? दे वर काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एट दैट टाइम. एंड लास्ट में कौन था? एक एक्सचेकर था, एक ऑडिटर का काम करता जो ट्रेड एंड कॉमर्स में सारी चीजें सही तरीके से अकाउंटिंग हो रही है नहीं हो रही उसके अकाउंटमेंट अपने पास में रखता था, ठीक है. एंड ऑल दिस बॉडी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू द क्राउन. They were directly reporting to the crown. all 6 members. Board of control पूरा, I can say board of control directly reporting to the crown. Got it? Sir, we can say कि from 1784 the crown started taking the power from British India Company. See, I am having some different point from you. I would like to say here, right, from 1773 itself, Okay. they start doing something to take things in their hand. India. Right. Okay, and 1774 was one of the step. Okay. progressive step. It's one of the step. ठीक है. So it's not the first and this पहला step 1773 था. आप उसमें देखना
कि गवर्नर जनरल बंगाल को बनाया गया, उसमें 4 काउंसिल मिनिस्टर बनाए गए। गवर्नर जनरल बंगाल किसके कहने पे काम करेगा? पार्लियामेंट के कहने पे काम करेगा। पार्लियामेंट किसको आंसरेबल? क्राउन को आंसरेबल। तो गवर्नर जनरल बंगाल इंपोज कर दिया ना, तो वो क्राउन को आंसरेबल है। तो अब कौन आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको आंसरेबल है? वो भी क्राउन को आंसरेबल है। एक दोनों, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बोले कैबिनेट मिनिस्टर भी तो है, रूट तो वही पार्लियामेंट वाला ही हो रहा है अभी, वाया पार्लियामेंट ही होके जा रहा है, जो कि पहले था, ठीक है, लेकिन चीजें लिमिटेड हो गई। मतलब रिस्पांसिबिलिटीज आर मोर, अब रिस्पांसिबिलिटी पर्टिकुलर लोगों के ऊपर, पर्टिकुलर लोग, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक नाउ इट्स ऑन द पर्टिकुलर पीपल। एंड उसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने लोग थे? 24 24 लोग थे। तो अब इनके ऊपर में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करेंगे, ठीक है। एंड लेटर, चलो ये इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट लेटर ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 कर दी गई। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी किस कैसे काम कर रहे थे सर इस टाइम पे? किस टाइम जब पे? ये लोग आ गए थे, ये 6 मेंबर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ व्हाट? सॉरी, काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव ऑफ काउंसिल जो आप बात कर रहे हैं, वो कैसे काम करें, तो उसके बारे में हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट। उसी के ऊपर में अभी तक हमने बात की थी, वहां पे 4 मेंबर्स थे। यस सर। अब इन्होंने 3 कर दिए, कम कर दिए, ओके ओके, in order to stop deadlock situations. यस सर। Got it? तो अब यहाँ पे काउंसिल ऑफ के जो मेंबर थे, काउंसिल मेंबर थे, द गॉट लिमिटेड 4 to 3. Now we have to understand this thing. Bombay and Madras वाली बात. It's written Bombay and Madras province got 3 members in executive council, including commander in chief. Somewhere here is Bombay, not here. Somewhere here is Bombay. Okay, somewhere is Madras, and somewhere is Bengal.